वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 6 इफ़ की रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस और इसकी पैराफ्रेजिंग हम करेंगे। पिछले सेशन में हमने चैप्टर नंबर 3 जो आपकी सॉलिटरी रीपर है उसका हमने रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस और पैराफ्रेज की थी। रेफरेंसेस का देख लेते हैं। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम इफ रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग। कॉन्टेक्स्ट इसका कुछ इस तरह से है कि दिस इज़ एन इंस्पिरेशनल पोएम दैट प्रोवाइड्स एडवाइस ऑन हाउ वन शुड लिव वंस लाइफ. Throughout the poem, the speaker gives the reader multiple scenarios, both positive and negative, along with a glimpse into how one should conduct oneself. The poem has an almost mathematical proof about it when its if-then scenario. With its if-then scenario, Kipling leaves the then until the final two lines. रिवीलिंग टू द रीडर, यानी पहले वो कहता है कि अगर तुम ये कर लो, अगर तुम ये कर लो, तो लास्ट टू लाइन्स के अंदर वो उसका जो देन है यानी कि जो रिजल्ट है वो बताता है. Kipling leaves the then until the final two lines, revealing to the reader that if he or she is able to do all that was just mentioned, he or she will not only have the word at his or her fingerprints, but he or she will also be a man. तो ये इसका कॉन्टेक्स्ट है. स्टैंजा नंबर 1 जो है उसकी एक्सप्लेनेशन आपने कुछ इस तरह से लिखनी है कि द फर्स्ट स्टैंजा वेस्टेज नो टाइम इन सेटिंग अप द इफ़ देन सिनेरियो, यानी ये पूरी पोइम जो है ये इफ़ देन सिनेरियो में कि इफ़ देन के अगर ये हुआ तो तब ऐसे होगा. इन दिस फर्स्ट इफ़ सिनेरियो, किपलिंग रिमाइंड्स द रीडर ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग अ लेवल हेड even when those around the reader do not have one and are blaming the situation on the reader. The third and fourth lines present the next if situation. He informs the reader that even if he or she is lied about, he or she should not stoop to the level of a liar. If he or she is hated, he or she must not become hateful. And finally, the reader should not appear to be better than he or she actually is. कि जो आप हों उससे ज़्यादा आप बोझ ना करें. Nor should he or she talk in a manner that does not reflect who they are morally or spiritually. तो पैराफ्रेज आप इसकी इस तरह से करेंगे. फर्स्ट जो आपका स्टैंजा है, इफ़ यू कैन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एक्शंस व्हेन एवरीवन एल्स इज ब्लेमिंग यू फॉर योर एक्शंस, इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ व्हेन एवरीवन एल्स इज डाउटिंग यू, मीनवाइल इफ़ यू कैन अलाउ अदर्स टू हैव देयर ओपिनियन अबाउट यू, इफ़ यू कैन वेट फॉर अदर्स विदाउट गेटिंग annoyed of waiting for them, and if you can stick to truth even when people are telling you lies, if you can stay moderate and never hate others even when people hate you for no reason. अच्छा, तो ये सारा ना इफ सिनेरियो चलता रहेगा. लास्ट टू लाइन से पहले तक सारा इफ सिनेरियो चलता रहेगा. स्टैंजा 2 जो है, इन द सेकंड स्टैंजा किपलिंग अर्जेस हिज रीडर टू ड्रीम एंड थिंक, बट to not get so caught up in dreams and thoughts that the reader loses his grasp on reality. Kipling uses personification in the next two lines. The word imposter suggests a pretense or disguise, pretense दिखावा. अच्छा, additionally, he could possibly be suggesting that with these two words often comes a disruption or change. In any case, the reader should not dwell too much on either triumph or disaster because they will soon disappear. The speaker informs the reader, speaker से मतलब poet है. The speaker informs the reader that he or she must be able to endure hearing his or her words being twisted by dishonest and harmful people in order to serve their own agendas. The speaker demonstrates in these lines the importance of being able to pick oneself up and start again if they fail. कि अगर हार जाएं तो दोबारा खड़े होने की जो अहलियत है उसके हवाले से बात हो रही है. इवन इफ द थिंग्स दे हैव फेल्ड एट हैज़ टेकन ऑल ऑफ देयर लाइफ टू अटेम्प्ट, द रीडर मस्ट ऑलवेज बी प्रिपेयर टू स्टार्ट अगेन. पैराफ्रेज इसकी कुछ इस तरह से होगी कि इट इज़ गुड टू ड्रीम एंड थिंक, यू शुडंट but you shouldn't let your thoughts control you. If you can stay cool even when you win or lose, when people are misusing your words, instead of getting hyper, if you can stay calm and if you have courage to see your important most things getting destroyed in front of you. अच्छा, स्टैंजा 3 जो है इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से होगी. द थर्ड स्टैंजा स्टार्ट्स विद द इफ क्लॉज containing into the first four lines. The theme in these lines is very similar to the one in the last two lines of the previous stanza. If you lose everything, you must be willing to begin again. Not only that, but you must also be willing to forget about the loss and not dwell on it. कि नुकसान हो गया तो बस उस नुकसान पे बैठ नहीं जाना, उसको भुलाने की भी सलाहियत होनी चाहिए. द नेक्स्ट फोर लाइन्स ऑफ द थर्ड स्टैंजा आर ऑल्सो टाइड टुगेदर. द लास्ट लाइन्स आर पर्टिकुलरली पावरफुल. द स्पीकर इज इम्प्लोरिंग द रीडर टू इंड्योर, बर्दाश्त करना, इवन इफ दैट फील्स बोथ फिजिकली एंड इमोशनली इम्पॉसिबल. कि जब जिस्मानी तौर पर भी और जहनी तौर पर भी बर्दाश्त करना मुश्किल हो तो तब भी बर्दाश्त करना है. इट इज़ ऑल्सो वर्थ नोटिसिंग द कैपिटलाइजेशन ऑफ विल. Perhaps Kipling wanted to emphasize the resilience of human spirit here, but by making it a power that that is separate from the person who possesses it.
पैराफ्रेज इसकी कुछ इस तरह से करेंगे कि इफ़ यू हैव द करेज टू टेक रिस्क एंड बेट योर ऑल एसेट्स ऑन वन मिशन विद रिस्क ऑफ बीइंग डिफीटेड एंड when you lose, if you have courage to stand up again and start everything again from zero, if you have temperament to be patient and wait for your turn, if you can convince yourself to stand firm when people are losing hope. Fourth stanza जो है, in the fourth stanza the consequences of doing all these ifs is finally revealed, but not before Kipling presents us with three more scenarios. कि लास्ट स्टैंजा के अंदर वो जो इफ्स इतने ज़्यादा इफ्स आ रहे थे उसका जवाब किपलिंग देता है, लेकिन आखिरी स्टैंजा में जवाब देने से पहले भी वो थोड़े से सिनेरियोज पेश करता है. द फर्स्ट वन, तीन सिनेरियोज वो आपको लास्ट स्टैंजा में भी बताता है. द फर्स्ट वन डील्स विद हाउ टू ट्रीट अदर्स रिगार्डलेस ऑफ देयर स्टेशन इन लाइफ. It should not matter with whom the reader is walking. He or she need to treat the lowest of the low and the highest in society exactly the same with kindness. ठीक है, यानी ये नहीं होना चाहिए कि जी बड़ों के साथ तो आप अच्छे से, जो अमीर लोग हैं उनके साथ तो अच्छे से पेश आएँ और गरीबों को रगड़ दें, ये नहीं होना चाहिए. Kipling is reminding his reader that it is important to be able to bounce back from disappointment or pain. One must not dwell on his enemies or the hurt or the hurt a loved one could potentially cause. ठीक है, कि कोई अगर दुश्मन नुकसान पहुंचाए या अपना नुकसान पहुंचाए तो उससे आपको बहुत ज़्यादा उदास होकर नहीं बैठ जाना चाहिए. फाइनली द पोएट गिव्स द रीडर हिज फाइनल पीस ऑफ एडवाइस. ही इज टेलिंग हिज रीडर टू नेवर गिव अप और वेस्ट इवन अ सिंगल सेकेंड ऑफ टाइम. If you are given a minute, make sure you use all 60 seconds of it. Finally, in the last two lines, the outcome of abiding by all these tidbits is revealed. और अगर वो सारे इफ्स जो हैं, पॉइंट ये कहता है कि वो अगर आप उनके ऊपर अमल करते हैं तो उसका नतीजा क्या निकलेगा. योर्स इज़ द अर्थ एंड एवरीथिंग दैट इज़ इन इट एंड विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, यू विल बी अ मैन माई सन. If one is able to keep all of these things in check, one will have the word at one's fingertips. तो ये उसका मतलब पूरे जो इफ्स बताए हैं उसका जवाब जो है वो उसका नतीजा ये निकलता है. तो इसकी पैराफ्रेज कुछ इस तरह से होगी. अच्छा, इफ़ यू हैव द स्टेबल कैरेक्टर टू स्टे नॉर्मल वेदर यू आर विद कॉमन पीपल और रॉयल्स, इफ़ यू कैन हैव दैट पर्सनैलिटी दैट नेवर गेट्स हर्ट बाय फ्रेंड्स और एनिमीज, and if you can have a forgiving heart instead of revengeful personality, if you can do all these things, then the word is yours and you will live the life of a good man. तो आज हमने चैप्टर नंबर 6 भी कर लिया. इसकी हमने समरी वगैरह तो पहले कर चुके हैं पूरी बुक की. इसकी हमने पैराफ्रेजिंग और जो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस था वो आज हमने कर लिया. तो ये आप नीचे देख सकते हैं चैप्टर नंबर 9. इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करते हैं. पूरी बुक वैसे मैंने बना ली है और मैं 1 गो में बैठ के इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ. तो ये रिपीटेडली बहुत जल्दी सारी की सारी अपलोड हो जाएंगी. आप डिस्क्रिप्शन को लाजमी चेक कीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन से तमाम पोएम्स की पैराफ्रेजिंग का लिंक जो है वो मिल जाएगा.